Hello children, in previous video I have explained the basic terms in accounting. In basic terms I have explained entity. It means specifically identifiable business enterprises like Super Bazaar, ITC Limited, etc. An accounting system is always devised for a specific business entity. This is called the entity. Next is transaction. Transactions means it can be a purchase of goods, receipt of money, payment to a creditor, etc. It can be a cash transaction or can be a credit transaction. Both transactions we have used in the accounting process. Next is assets. Assets are economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms, means money terms. Assets are items of value used by the business in its operation. Operations means activities. These are the assets. Assets have two types. First is current asset and second is non-current asset. Assets are items of value used by the business in its operations, activities like cash, bank, stock, furniture, machinery, equipment, etc. Non-current assets means those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for resale. These are called non-current assets, like long-term investment, fixed assets like land, building, furniture, machinery, etc. These type of fixed assets. Next is fixed assets are used in a long term, that is called the fixed asset. Intangible assets are those assets which can be seen and touched, like land, building, software, computer, furniture. Intangible assets, which assets we do not have seen or felt, these are intangible assets like patents, goodwill, copyright, trademark, etc. These type of assets I have already explained. Today I will explain non-current investment. Non-current investment refers to the investment which can be held for more than 1 year during the accounting period. So, during the accounting year, and this time is more than 1 year. 1 year, more than 1 year, which assets we have used, these called non-current investment like land, plant, equipment, building. अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है, कोई जमीन खरीदी है, तो अब आपने उसमें जो पैसा लगाया है, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट. जिस पैसे से आपने उसको खरीदा है, जितना पैसा आपने उसके लिए खर्च किया है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि आपने जो जमीन या जो मकान आपने या जो घर या कोई कंस्ट्रक्शन किया है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म के लिए है. इसका मतलब 1 साल से ज़्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल उसकी यूजफुल लाइफ है. तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. कि जहाँ पर हम किसी एसेट्स में पैसा लगाते हैं और जो एसेट्स हमारे लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए काम करती है, उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज डिफर्ड टैक्स एसेट्स आर, deferred means delayed, are often created due to taxes paid or carried forward, in short form CF, but not yet recognized on the economic statement. Example, टैक्स असेसमेंट. इसका मतलब है कि जब कोई गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है, उस टैक्स को हमें पे करना था लेकिन हमने उसको पे नहीं किया, वो डिले हो गया. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको हमारे नाम से कैरी फॉरवर्ड करेगी. सपोज इस साल का इनकम टैक्स मुझे पे करना था, मैंने नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर वो हमारे नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, CF कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे अकाउंट में. नॉट येट रिकॉग्नाइज ऑन द अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट. अभी गवर्नमेंट को मेरे उस टैक्स पेड से कोई भी इनकम नहीं हुई है. Deferred tax assets can be created due to the taxes authorities recognizing revenue. अब गवर्नमेंट को मुझसे जो टैक्स हैं वो मिलेंगे, जो उसकी रेवेन्यू इनकम है, और उस रेवेन्यू को लेने के लिए उसने मुझे नोटिस भेजा है, पेनल्टीज चार्ज की है, मैसेजेस किए हैं, तो ये उसके खर्चे हैं. एट डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ एन अकाउंट स्टैंडर्ड. तो जब इस तरह की प्रोसेसिंग होती है कि जब हमें टैक्स पे करने थे लेकिन हमने टैक्स को पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट हमारे उन टैक्सेस को कैरी फॉरवर्ड कर देती है और उनको पास कर देती है नेक्स्ट ईयर के लिए. अब उस पर जो भी खर्च वो करती है, उस खर्च को हम क्या करेंगे, पे करेंगे. जब भी हम
अपने टैक्स को पे करेंगे तो वो सारी पेनल्टीज, वो सारे जो एक्सपेंसेस हमारे लिए किए हैं गवर्नमेंट ने, वो सारे हमसे डिडक्शन कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एडवांसेस। द लोन अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रीपेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इधर इन लमसम, लमसम मीन्स टोटल अमाउंट, और इन सुटेबल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म एडवांसेस की अगर कोई आदमी बैंक से लोन लेता है, अब लोन लेने के बाद उसको रीपे करना है, वो वापस करेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो जब हम उसको वापस करेंगे तो हमारे जो अमाउंट हमने यूज़ की है उस पर हमें बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इधर इन लमसम, हम जो उसका पैसा वापस कर रहे हैं वो हम लमसम एक सिंगल अमाउंट में भी पे कर सकते हैं और इन अ सुटेबल इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। इट कैन बी ए टर्म लोन पेबल आफ्टर 3 ईयर। सपोज एक आदमी ने एक हाउस लोन लिया है और वहाँ पर उसको पे करने के लिए उसने 3 साल का टाइम लिया है। अब वहाँ पर जो बैंक है 3 साल में उसने उसकी इंस्टॉलमेंट बनवाई। अब जो है जो जिसने वो टेक ओवर किया है लोन, 3 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट प्लस करेगा, पे करेगा, और प्लस जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पे करता रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ टर्म्स हैज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एडवांसेस। नेक्स्ट इज अदर नॉन करंट एसेट आर अ कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट for which the full value will not be realized within the accounting year। कि यहाँ पर ऐसी एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू 1 साल के लिए नहीं होती, बहुत ज़्यादा मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। जैसे पेटेंट्स, अगर प्रॉपर्टी प्लांट की जो हमारे पास ये एसेट्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कि जब हम कोई पैसा किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए खर्च करते हैं उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट की ऐसी एसेट्स जिनको अगर कभी हम बेचना चाहें तो वो एसेट्स ऐसी हैं जो हमारे लिए वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी और हम उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो उसको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, जिसके लिए पेटेंट्स हैं, प्रॉपर्टी है और प्लांट एटसेट्रा। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year। कि ऐसी एसेट्स जिसको अगर कभी हम बेचना चाहें, कभी मैनेजमेंट के लिए हम उसको कन्वर्ट करना चाहें इन कैश 1 साल के लिए, तो वो हमारी वापस से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। दिस टाइप एसेट्स कॉल्ड करंट एसेट। करंट का मतलब 1 साल का टाइम को हम करंट ईयर कहते हैं। ये करंट 1 साल के टाइम के लिए, 1 साल के लिए जो हमने एसेट खरीदी वो करंट एसेट है। 1 साल के टाइम को जब हमने यूज़ किया वो करंट टाइम है। तो इसका मतलब कि ऐसी एसेट्स जिनको हमने 1 साल के लिए खरीदा है, या वो हमारे पास ऐसी एसेट्स है जो 1 साल के लिए ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन कैश, तो उनको हम करंट एसेट कहते हैं। जैसे डेप्टर, कि अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, अब वो आपको उधार अगर आप उसको दे रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, आपने कहा कि भाई 1 साल से पहले मुझे पैसा वापस चाहिए, तो ये आपकी टर्म क्या है, करंट एसेट। स्टॉक इज कंटिन्यूसली सोल्ड एंड बिल्स रिसीवेबल आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश। कि जो भी यहाँ पर स्टॉक है, जो भी स्टॉक आप सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, मान लिया जो स्टॉक में आपके सामान है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, तो जब उसको आप बेच रहे हो कंटिन्यूसली, तो उससे जो पैसा आपको आएगा वो आपके 1 साल के अंदर की ट्रांजेक्शन होगी, जिसे हम करंट एसेट्स कहेंगे, जो भी उससे पैसा मिलेगा। बिल रिसीवेबल, आपने बिल रिसीव करने के लिए किसी को टाइम दिया कि भाई मुझे 1 साल से पहले मेरा पैसा जो है वो मुझे रिटर्न चाहिए, तो इन 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर जो भी एसेट, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे साथ होंगी, जो हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बाय इट्स नेचर readily realizable and it's intended to be held for not more than 1 year from the date on which such investment is made। जैसे करंट एसेट 1 साल के लिए जो भी एसेट्स हमारी कन्वर्ट हो सकती है इनटू कैश, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट की ऐसा पैसा जो हमने लगाया है और जो हमें 1 साल के लिए ही हमने जिस पैसे को इन्वेस्ट किया है, उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक। स्टॉक includes the value of those goods which we purchase for reselling and which are unsold at the end of the accounting period। It has 2 types। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है। स्टॉक का मतलब है कि ऐसा
सामान जो हमारे पास है और जिसको हम 1 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब वहाँ पर कुछ स्टॉक हमारे पास ऐसा भी होगा जो हमारे लिए ओपनिंग होगा, जिससे हमने अपने काम को शुरू किया, और कुछ स्टॉक ऐसा भी होगा जो हमारे पास रिमेन होगा, जो हमारे लास्ट टाइम पर हमारे पास बचेगा। तो जब हमारे पास ओपनिंग, जब हमारे पास कुछ हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस को, हम काम को स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पर जो भी स्टॉक, जो भी सामान हमारे पास होगा, हम उसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। पूरे साल में हमने जो भी काम किया, जितना भी सामान बेचा, जितना भी उसको यूज़ किया, और सब कुछ करने के बाद लास्ट मोमेंट पे 31 मार्च को हमारे पास जो भी सामान बचा, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। इन शॉर्ट फॉर्म ओएस, ओपनिंग स्टॉक इन शॉर्ट फॉर्म ओएस, क्लोजिंग स्टॉक इन शॉर्ट फॉर्म सीएस। इसका एक एग्जांपल, सपोज आपने मार्केट से 10 किलो चीनी खरीदी। अब आपने उस 10 किलो चीनी को एक दिन के लिए तो यूज़ नहीं करने के लिए खरीदा है। आपने सपोज अजम्पशन लगाई कि भाई 1 महीने का हमारा जो खर्चा है शुगर के लिए वो 10 kg का है। आपने कंटेनर में 10 kg को भरा। सपोज कब? 1 अप्रैल का डे था, और आपने 1 अप्रैल को 10 kg जो आपके पास शुगर आपने खरीदी, उसको आपने एक कंटेनर के अंदर फिल कर दिया। अब आपने कब तक के लिए इसको खरीदा? 30 अप्रैल। इसका मतलब 1 महीने के लिए आपने इसको खरीदा है। अब यहाँ पर जो 1 अप्रैल को आपने जो स्टॉक भरा, जो स्टॉक आपने अरेंज किया, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। कि आपकी जो ओपनिंग हुई स्टॉक की वो कितनी थी? वहाँ पे 10 kg। अब आपने पूरे मंथ उसको यूज़ यूज़ करते रहे कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे जब 30 अप्रैल को हमने देखा तो वहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम मतलब 500 ग्राम जो है वो रिमेन बची है। तो इसका मतलब आपने जब ओपनिंग की थी, आपने जब सामान भरा था, स्टॉक अरेंज किया था, तो वो आपका 10 kg था ओपनिंग। अब जब आपने उसको पूरे महीने या पूरे साल आपने कंटिन्यूसली उसको यूज़ किया है, तो वो धीरे धीरे कम होता रहा, और लास्ट जब हमारा एंडिंग टाइम आया तो वहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट बची उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कि हमारी ओपनिंग हुई 10 kg से और हमारी क्लोजिंग हुई हमारे 500 ग्राम से। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स कि रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल कि जो भी हम किसी के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो भी हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए जो भी पैसा हमें मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मीन्स व्यापार, बिजनेस। रिसीवेबल मतलब जो भी हमारा सेल परचेज, जो भी सर्विस यूज हो रही है, उसके बदले में जो हमें मिल रहा है वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल कि इसका मतलब कि ऐसी अमाउंट जो हमें रिसीव हो रही है ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कि अपने सामान को बेचने से या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने से कंपनी की तरफ से, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कि जो भी हमारी बिजनेस में जो भी गुड्स प्रोडक्शन होता है, उसको सपोज हमने बेचा, उसको बेचने से जो भी अमाउंट हमें मिली, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं इसको। इट इंक्लूड्स बोथ डेब्टर्स और बिल रिसीवेबल। डेब्टर्स, आपने किसी को सामान उधार में बेच दिया, अब वो आपको पैसा वापस देगा, तो वो आपका डेब्टर, देनदार, वो आपका पैसा वापस देगा। बिल रिसीवेबल, आपने किसी को सामान बेचा है, आपने उसको जब उधार में बेचा तो आपने एक बिल बना के दिया कि भैया 10,000 का बिल है और इसको आप मुझे 1 महीने के बाद वापस कर देना, तो वो आपका 1 महीने के बाद आपको पैसा वापस कर देगा, तो ये आपका बिल रिसीवेबल बन जाएगा। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कि कैश तो जो आपके पास कैश है, लेकिन कुछ ऐसी एसेट्स जो आपकी हमेशा कैश इक्विवेलेंट मतलब कभी भी अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहें तो वो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, ऐसी एसेट्स को हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आर इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। एक फॉर्मल अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज आपके जो मदर हैं उन्होंने ज्वेलरी खरीदी, अब वहाँ पर उन्होंने एक दिन में 50,000 रुपये का जो था एक कुछ ज्वेलरी बनवाई, तो 50,000 जो अमाउंट थी कैश वो चली गई और उसके बदले में आपको जो ज्वेलरी थी वो मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैश माइनस हुआ और प्लस आपका गुड्स हो गया कि आपने जो ज्वेलरी वहाँ पर खरीदी। अब इसके बाद सपोज कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको 50,000 रुपये चाहिए। आपने सोचा कि किसी से मांगना क्यों है, बैंक से उधार क्यों लेना है, किसी से क्यों लेना है पैसा, और ऐसा करते हैं कि इस ज्वेलरी को हम सेल कर देते हैं।
तो उस ज्वेलरी को अगर आप सेल कर देंगे तो वो जो आपका मेटल था, वो जो आपकी एसेट थी, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैश में, और वो कैश आपको अरेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ ऐसी एसेट्स जिनको हम जब चाहें कन्वर्ट इनटू कैश, तो हम उनको एसेट्स को जो कैश के इक्विवेलेंट है, कि कभी भी हम उन एसेट्स को अगर सेल करेंगे तो वो कभी भी हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम कैश इक्विवेलेंट या कैश इक्विवेलेंट एसेट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स इज व्हेन short term loans and advances when a fund is provided by the bank to a business corporation or an entity for a specific purpose to be repayable after a short duration is known as advances। कि जब कभी बैंक ने कुछ फंड, सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा कि आपका जो लोन है वो आपके फंड पर आपको पे कर देगा। कि व्हेन अ फंड इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, कि आपका कुछ जमा पूंजी है जो बैंक में, सपोज आपकी LIC है, सपोज आपका FD है, तो इन सब पर आपको लोन चाहिए, तो वो बैंक क्या करेगा, आपको उस फंड पर जो आपने जमा किया है उस फंड पर आपको बैंक वो प्रोवाइड लोन कर देगा। टू अ बिजनेस कॉर्पोरेशन, की आपको अपने बिजनेस के लिए, और एन एंटिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि भाई आप लोन इस एसेट्स पे, इस फंड पर क्यों ले रहे हो, तो आपको वहां पर स्पेसिफिक पर्पज जो है वो अपना आइडेंटिफाई करने पड़ेगा। टू बी रिपेबल आफ्टर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज नॉन है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसको रिपे कब करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन में या फिर नॉन एज एडवांसेस, तो हम उसको कहते हैं एडवांसेस। कि सपोज आपकी एक FD थी, आपने एक FD की और उस FD को फिक्स डिपॉजिट, आपने एक फिक्स डिपॉजिट को 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया बैंक में। अब आपने वो इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए, लेकिन आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए। आप सोच रहे हो कि भाई FD को ब्रोक क्यों करना, उसको तोड़ना क्यों है, उसको पहले ही कवर, जब उसका कवरिंग टाइम हो जाएगा, जब वो कवर हो जाएगी, मिच्योर हो जाएगी, तो हमें उस पर फायदा मिलता है, उस पर प्रॉफिट होता है। तो लेकिन आपको इमरजेंसी है, तो आप चाहते हो कि हमारी जो FD बैंक के पास है, हमारा जो फिक्स डिपॉजिट बैंक के पास है, उस पर मुझे कुछ थोड़ा सा जो लोन है वो मुझे मिल जाए, तो जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो बैंक कहता है कि वो आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी 5 साल, उस 5 साल से पहले वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कि आपका जो वहाँ पर फंडिंग है, आपका जो जमा किया हुआ पैसा है, उस पर बैंक आपको एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल पर्पज के लिए पैसा पे कर देगी, लेकिन वो आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और पैसा अभी आपकी जो FD है वो मैच्योर नहीं हुई और आपको बैंक ने उल्टा वापस से पैसा दे दिया, तो वो आपका एडवांस बन जाएगा। अ लोन बाय नेचर इज अ डेब्ट, डेब्ट मतलब देनदारी, हमें पे करना है। एडवांसेस आर बाय नेचर अ क्रेडिट फैसिलिटी, उधार आपको दिया है। लोन्स आर जनरली फॉर अ लॉन्ग टर्म, लोन क्या है, जो सिंपल लोन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो फंडिंग है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको बैंक लोन दे रहा है एडवांस में, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी मैच्योर नहीं है, उसका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको, आपकी जो कंडीशन है बैंक की तरफ से वो ये है कि वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए मिलेगा, और आपको वो जल्दी रीपे करना पड़ेगा। अदर करंट एसेट इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CCE, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवांसेस पेड टू एम्प्लॉय। अदर करंट एसेट की जो हम पे कर रहे हैं अपने 1 साल के टाइम पर, कि हमने किसी को एडवांस सैलरी दे दी, पेड टू एम्प्लॉय की, सपोज हमने अपने एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी पे कर दी, तो वो हमारी अदर करंट एसेट्स है। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल विच अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर मीन्स ओनर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट, कि जब कोई ओनर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको वहां पर कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। अब उसके जो फॉर्म है, वो फॉर्म हो सकती है उसकी कैश, कि सपोज उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया,
उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ सामान अरेंज किया हो, रॉ मटेरियल खरीद के लाया हो, खुद से उसके पास घर में हो, वहाँ पे वो रख दिया हो। एसेट्स कि सपोज एक उसने शॉप बनाई, शॉप को अरेंज करने के लिए, शॉप को स्टार्ट करने के लिए उसके पास एसेट क्या चाहिए, पंखा चाहिए, उसके बाद टेबल चाहिए, चेयर चाहिए। तो उसने देखा कि ये एसेट्स भी चाहिए मुझे शॉप में बैठने के लिए, गर्मी है, पंखा चाहिए, तो उसने अपने घर से फैन या टेबल, चेयर, इन सबको ला करके उस शॉप में अरेंज कर दिया। तो ये क्या है कि ये उसकी एसेट्स है। तो इसका मतलब जब कोई ऑनर, जब कोई बिजनेसमैन या कोई भी प्रोप्राइटर जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो वहाँ पर कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। कभी कभी वो कैश में इन्वेस्ट करता है, कभी गुड्स में इन्वेस्ट करता है और कभी एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। हमेशा कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल इज इक्वल्स टू ए एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं सी इज इक्वल्स टू ए माइनस एल। कैपिटल मतलब आपका पैसा, एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो आपके पास हैं, जो आप लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये आपकी एसेट्स हैं। लायबिलिटीज मतलब कि उन एसेट्स को खरीदने के लिए आपने कितनी लायबिलिटीज यूज की है, कितना पैसा है जो आपको उधार लिए, आपने उधार में यूज किया है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। सपोज दैट द फॉलोइंग बैलेंसेज अपियर्ड इन द बुक ऑफ अ फर्म। कि सपोज एक बुक में हमें ये बैलेंसेज जो है वो शो किए जा रहे हैं। कैश है उसके पास 20,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 1 लाख, डेप्टर 40,000, क्रेडिटर्स 30,000। इन दिस केस कैपिटल विल बी कि एक आदमी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पर उसने इन सब चीज़ों को इन्वेस्ट कर दिया। कैश लगाया 20,000 का, एक मशीनरी खरीदी 50,000 की, स्टॉक उसने लगाया, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड। तो स्टॉक में वो उसके पास जो चीज़ें थी वो 1 लाख रुपए की वैल्यू की हैं। डेप्टर उसके जो देनदार हैं वो 40,000 रुपये उसको देंगे। क्रेडिटर जो उसको पे करनी है लायबिलिटी 30,000 की है। इन दिस केस कैपिटल विल बी, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना कि एक्चुअल कैपिटल उसने कितनी इन्वेस्ट की अपने बिजनेस के लिए। तो कैपिटल को निकालने के लिए कैपिटल इज इक्वल्स टू जो चीज़ें आपकी हैं, कैश आपका है, मशीनरी आपकी है, स्टॉक है, डेप्टर है, इनमें से हमने जो लायबिलिटी चुकानी है, जो उधार चुकाना है, उसको हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास अमाउंट बची, तो हमारी निकल जाएगी कैपिटल। सो कैश 20, मशीनरी 50, 1 लाख रुपए का कैश आपके पास था, आपने लगा दिया। 50,000 का आपकी मशीनरी आपने इन्वेस्ट की, 1 लाख स्टॉक आपने लगाया था, 40,000 का डेप्टर माइनस 30,000 आपने इन सब चीज़ों को प्लस करके लायबिलिटीज पे कर दी। तो इसका मतलब 1,80,000 आपने इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो आपके पास आएगा 2,10,000। 2,10,000 की आपकी टोटल एसेट है, टोटल वैल्यू है फर्म की, जिसमें से आपने अपनी लायबिलिटीज को अगर पे कर दिया तो अब आपके पास जो रिमेनिंग एसेट्स वैल्यू है वो है आपकी 1,80,000। सो स्टूडेंट, यू हैव टू बी read these basic accounting terms carefully, and if you having a problem you can ask in a group. So in unit test these terms will be used, so read this carefully. So take care students and goodbye.